The layers I worked for over 16 years, and I have practical experience of the layers production. So although there were so many disciplines touched during my tenure, and after that I worked at the administrator posts as a dean, as a principal officer, as a principal officer, as well as a chairman and head of the department of livestock, as well as poultry sciences. My basic qualification uh, uh, overall my qualification is relevant to the production of the poultry. That is enough, I think, for this. I welcome to all of you in this conference and share to share very warmly welcome to here regarding the online work arranged by the Imran Qayyum and their team. Thank you very much. सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर. डॉक्टर सफदर अंजम सर, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. मिस्टर हरमन, कैन यू लिसन? Yes. Yep. So it's a special introduction for you only, because everybody know that Dr. Safdar Anjam is a very famous in poultry sector. So I request him that to introduce you. So please you introduce yourself to our participant and especially our patron in chief, Dr. Safdar, please. Okay. Thank you very much for having me in your meeting. My name is Herman Fleuren from the company Opticon Agri-Systems. Opticon is a company, it's owned by another company, by an electronic engineering company, and part of it is automation for intensive animal production, and special in the poultry industry. We manufacture and develop all our equipment since 1985, and have set up a large group of international dealers which are buying from us and installing our equipment. Our main equipment is for, first of all, for ventilation, climate control, with all the additional products. And apart from that, we are very active with management activity for poultry production. For instance, we do all controlling and measuring the weight of the birds, how they are performing, the uniformity, the standard deviation, so we can see exactly how they are growing, and we get the feed conversion as well, because we do also monitor the feed consumption by using a batch weighing system or silo weighing. We do water measurement, water control. So everything what can be controlled and measured, that's in our hands. We do management in order to energy savings, but first of all, most important, to create the right environment for the poultry, especially in the first 10 days. We know it is very important to create the optimum situation for the birds to perform. So that's in a nutshell what we do. With the permission of poultry production consultant Yes, sir. Yes, sir. of HICO, Yes, sir. I request your honor that I am grateful on this panel, you're joining at this panel, and you are surely having a vast experience just right from 1985 to 20, and you're uh, joining in this meeting. Hello, Yes, sir. Yes, sir. hello, and experience sharing
I'm grateful to you that especially the aspects which you have countered regarding the experience, they are much of value, and due to that, surely we will have your services during the uh, post Kanur as well. And grateful to you for joining us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Mr. Herman, my question is for you that what do you think, what is the importance of ventilation regarding poultry sector? Yes. In the very past, the genetics were not so good as they are today. So that is, of course, one of the reasons to have a better environment. And secondly, the commercial producers, it's very important. They are under high pressure to produce for a very acceptable price chicken meat. And in the past, the density in the barns was very low, and there was only natural ventilation. So there was no control about the environment, and also disease could happen very easily. And today, with the new technology, it is accessible for everybody to install modern equipment to achieve the best performance for the birds. As we know, today the birds are coming from the hatchery most of the time. And in the very first 10 days, it's a very important time period for the chicken. When it is too cold, they try to maintain their body by using the feet, and if it's too cold, they're going to sit together. So for us in Western Europe, to begin with, it is impossible to produce in a commercial way poultry without advanced automation products. So the need for the chicken farmer is there. If he has no automation, he cannot produce any chicken anymore. The density in Holland, for instance, I think we are allowed to have a maximum of 35 kilo of live weight chicken in a broiler house. So we can only achieve that with the best climate. Another thing is very important, that the insurance companies, they only accept a customer when they have the best alarm system and ventilation system, because at the end of the flock period, there's so much kilogram of meat in the farm, which is a lot of money. So it is important to have the best situation which is possible for the chicken. So ventilation is important, of course. First of all, the temperature should be okay, the humidity should be okay, the airspeed should be okay, the different gases like ammonia, CO2, what else do we have? The level of oxygen, of course, should be okay, and there should be no draft. So depending on the climate in the local area, tropical or like in Europe, here in Western Europe, it's mild. It's not very cold in the winter and not so very hot in the summer. So it's more easy than in your country. We hardly don't have any pad cooling here, for instance. There's no need for it. But if you use pad cooling, you have a completely different approach of your ventilation system, and the birds are bigger. So yeah, that is what is needed for ventilation. And then I can show you step by step how we approach a ventilation system for a poultry house to calculate how many ventilation is needed for maximum ventilation,
how to control minimum ventilation and how to control in cold areas, how to control in hot areas of the world. So yes, and of course everything has to be monitored today to have access to the farm. So you can go in a farm. I can show you quickly. So you go into farm data. Oops, Opticon farm data. Right, right. So you can see, and then I make access, sign in, and now I'm connecting to a farm, and then I can, for instance, go here, scroll, and I see, for instance, here the weight of the birds from yesterday, the day before yesterday, and I can see that in a graphical way. See, if you want to see how the birds perform, the red lines are the number of weighings per day, and the black line is the growth, how much they're growing. I hope you can see it when I. So, Mr. Herman, actually, this we already used farm manager. Actually, if Dr. Usman is here, he know very well that we had used this farm management, informatic management. Yes, we already used, and it's very effective. Yes. Regarding the data, yes, regarding the data collections, it's very effective, very important, very compulsory. You know, we are using in Pakistan, most of the people using data logger in Pakistan, Yeah. because they know that new systems. But one question, Mr. Herman, Yes. because it's a good luck that you are with us, and regarding the ventilation. My question is regarding the ventilation, because now we are focusing on the ventilation. So let me know that now the season is too much humid, you know? The Can you humidity. listen to me? Yes, humid, and the temperature is already high. So what is the solution you have, please? Okay. Humidity is a problem, of course. You can get wet litter, which is bad for the birds. You know, the litter will stick on their feet, and you can get any disease. First, you can have too high humidity when you have small birds. That can happen when your minimum ventilation is too low. You try to save energy by not taking in fresh air from outside. For instance, in the first days of the flock, your target temperature is, let's say, 32 degrees, and your humidity is 70 degrees, your target value. And when the humidity, first of all, the birds, they breathing and producing CO2 and humidity, but also some types of heaters, open fire gas heaters, they produce CO2, but also humidity. And when you want to create 32 degrees, that means most of the time you have to switch on the heater to maintain the temperature. And you don't want to do that too much because it costs fuel, it costs gas. And to save that, you can reduce your minimum ventilation, but that means your humidity level goes too high. We have two solutions for that. First of all, the humidity is expressed in percentage of absolute saturation of the air, in relative humidity. And we measure temperature and relative humidity, which we can calculate the absolute humidity, which is how much moisture can contain in 1 kilo of air related to the actual temperature. The higher the temperature, the more moisture the air can contain. So we also measure the outside temperature and outside humidity, and then we calculate what is the absolute humidity level of the outside
air. When this is lower than the inside air, we can decide to bring in more fresh air because it's able to pick up moisture from the house and take it out. Okay. In Holland, we have a lot of rain, or Western Europe, so the outside humidity level can be higher. Also, the absolute humidity level can be higher. So then the computer is not able to bring in air from outside to reduce the absolute humidity in the house. The only thing we can do then is to switch on the heater more often, so the temperature goes up and the humidity, relative humidity, will go down. And as the temperature goes up a little bit more ventilation is needed. And in that way, moisture will take it out of the house. That is the way how we do it. When you have heavier birds at the end of the flock, your ventilation rate is much higher. And then you can have the same problem. The humidity level can be too high. Most of the case, it is created by, of course, the manure of the chicken. A lot of water comes in, and the evaporation, the respiration of the birds, and of course also because of the incoming air can be a high level of humidity. So there's not so much you can do because I've never seen that we are drying the incoming air. We take the incoming air as it is. So to reduce the humidity. क्या बेवफाई आप लोग भी बस ऐसे गए ऐसे तो ऐसे टाइम हमने अपना कारोबार कर रहे हैं, वो लोगों से लेके भर रहे हैं माल। आप सुना लगा तो आपको किसकी जो है ये साउंड यहाँ पे कोई में डॉक्टर आई साहब थिंक आए, आपने म्यूट कर दे, आप सारे म्यूट कर दें। आप मिले हैं, आपने लोगों को भी देखा है, हमारे साथ इस तरह न करें। क्यों किधर मिले आप किधर मिले हमें? मैं नहीं मिला, उन लोगों से मिले हैं। नहीं मिले, वो गेट पे जब अच्छा चलें, ठीक है। और वेलकम वेलकम। अच्छा ये 4 कट्टे कितने का दोगे? सबमिट मैं म्यूट करता हूँ जी इसको। आई थिंक सबको चार म्यूट करता हूँ। परसेंट। वेट अ मोमेंट मिस्टर हरमन, वेट अ मोमेंट। No I problem. just mute all the चार other नहीं है, इसमें participants. दो हैं, That's good. दो बिक गए हैं। किसको? किसको क्या लोग ले गए? हमारे वाला? हाँ जी, अच्छा, कौन से लोग? एक बड़ा वाला है काला, काले हैं, सारे नहीं वो प्योर ब्लैक, ये दे दिया। एक ये और एक ये सबज तिलारे वाला था, ये कितने का? इसके अलावा देखें ये कितने का दिया तुम? ये दिया है, वो दिया 65 का बड़ा वाला, ठीक है। और ये 55 का। There's something problem. से ले गए। अच्छा, छोटे हम ले जाए, बड़े लोग नहीं ले जाए। छोटे नहीं है, जो छोटा है उसके बराबर के हैं। देखिए जो बड़ा वाला है ना 65 वाला, वो अलग है बिल्कुल, जो प्योर ब्लैक है काला। और बछड़े चारों का दाम दो। We should finish our day for Lulu Forest. Yes. And after that, request the Zizo asked me to bring to Max Grill to Bisu and tomato. Mr. Herman, you just a minute, Mr. Herman, just a minute. One minute.
Yes, Mr. Herman, do you listen me? Yes, I can Yes, hear please. you. Yes, please start, sir. Thank you. Yes, please. You please carry on, sir. Mr. Herman, you Yes. please carry on, sir. Okay. Because Yeah. before, I think we know listen your. Yes, we were talking about humidity in a poultry house. We all know humidity is very important when it's too dry. It's not good. You have too much dust in your house, and the air is not very well for the birds. So we can start humidifying by using a nozzle system. That's one approach. And the other way is when it's too hot, too humid. When it's too humid, I explained to you, we use inside and outside relative humidity sensor in combination with the temperature sensor to calculate the absolute um, amount of moisture in a kilogram of air. And then the computer can decide to take fresh air from outside, to take moisture out of the barn and take it out, or the computer can decide to switch on the heater to increase the temperature, and so the air can contain more moisture and the relative humidity goes down, which is better for the birds. Both ways are costing energy. Most of the time, when you increase the ventilation rate by bringing in more air from outside, is the cheapest way. But if the outside condition is not good enough to reduce the humidity, we have to switch on the heaters in the house. And of course, that costs extra energy. But at the end, it's better to try to optimize the climate. There's one problem because the incoming air is not preconditioned. That means it comes in as it is. And we cannot have at the same time and the optimum temperature and the optimum humidity. We have to deal with the best possible situation at that time. And the main reason is that the incoming air cannot be, how to say that, dehumidified. So only when the climate outside is good enough and the air to bring in to pick up the moisture, the computer will decide to do that. So that is how we control the humidity level. So that means we need an inside and an outside humidity sensor and inside outside temperature sensor to do that. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much. Actually, Okay. nowadays in Pakistan Yes. have this critical problem. So what we do, so I asked this question to my participant, I think, what they are doing and what we will, Mr. Just a minute. Mr. Usman Sever, please join us. Usman Sever, what you are doing, because I have a lot of discussion. Just a minute, I am opening your mic. So, Mr. Herman, Mr. Usman Hello, sir. will. Sorry, I was a little bit late. I joined right now, and unfortunately, I am outdoor. So, can you please tell me what is a little bit, just introduce this discussion about this discussion, so I may be able to discuss about that. Yes, we are discussing that the critical problem of humidity and temperature nowadays, and how we control in our farms. You are in Gulf area, and you told us that how you control this problem when the humidity is high and the temperature is also high. Sir, for me, normally this is a conventional system
that we just increase the airspeed. This is the only solution for us to control the humidity. Because in second thing, I am right now I'm doing on a layer cage system. So for in that there is a little bit of problem in moisture in manure. So one important thing, we just have to remove manure on regular basis and increase the frequency of removal of manure because it contains too much moisture in these days. Secondly, we just increase the air speed of the shed. So and also decrease the cross-sectional area by placing some curtains on the rooftop. So these 2 to 3 basic things we do to control these humidity nowadays. Ji, thank you very much, Mr. Salman Sarwar. Mr. Herman, Usman is our veterinary doctor and now in Gulf area, and he is working on the layer cages farms. Mr. Herman, wait a minute, please. I just brief my other participant that what we are discussing. Okay. You please wait a moment, sir, because I speak in Urdu, sir, please, because some supervisors, some electrical, some mechanical people are also with us. That's why I need some time. जी अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को, तमाम पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी हमारे साथ हैं मिस्टर हरमन फ्लोरन, ये हॉलैंड से हैं और ये वेंटिलेशन मास्टर्स हैं और ऑलरेडी इनकी अपनी एक वहाँ पे कंपनी है और ये वेंटिलेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका फोकस जो है सारा वेंटिलेशन पे है, तो इस वजह से मैंने इनको दावत दी थी कि ये आपसे थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इस वक्त वेंटिलेशन जो है इस वक्त बड़ी मॉडर्न फील्ड बन चुकी है। और वेंटिलेशन में जब से फार्म मैनेजमेंट आई है, फार्म ऑनलाइन सिस्टम आया है, तो उसमें ये है कि आपके अगर मोर देन 100 फॉर्म भी हैं तो उसका सारा डेटा आपको मोबाइल पे आपने मिल जाता है आपको, और आप फिर फैसला कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। तो मैं इनसे यही डिस्कस कर रहा था, और स्पेशली जो आजकल का जो प्रॉब्लम है हमें, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। और मिस्टर उस्मान ने हमें बताया, तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर उस्मान। और मैं अब यहाँ पे हमारे साथ हैं मिस्टर अमीर हुसैन। मैं अमीर हुसैन आपको मैं कहूँगा कि आप किस तरह इसको करते हैं। एक्चुअली हमें अभी आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि हमें आप सबको भी बता दूं, आप सब ने खास जो हमारे ग्रुप में हैं उन्होंने भी सुना होगा कि हमें सजेशन मिली है, और उसमें ये है कि आप अपना जो अगर आपकी वाटर टैंक जो है पैड का, उसका अगर आप जो उसमें अगर आप नमक, अगर वो स्मॉल टैंक है उसमें अगर 5 किलो नमक और साथ आप उसमें डाल दें शैम्पू की 4-5 साशे डाल दें। स्पेशल इस वक्त जब आपके हाउस के अंदर 95 और 100% नमी है और टेम्परेचर भी आपका 30 प्लस है, तो आप जो है उस वक्त जो है उसमें वो डाल के और उस वक्त आप वो पानी चलाएं, तो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उसमें नमी एकदम डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जो एयर में वाटर सेचुरेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी उसके साथ साथ आ रहे हैं, मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि आप भी इसका एक्सपेरिमेंट करें। आप वो टैंक का पानी थोड़ा कर लें और अपना डेटा सारा नोट कर लें, और जब आप ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें देन आप वो डेटा भी नोट करें। और फिर आप इसका आपने ये ख्याल रखना है कि जब ये आपने दिन को करना है ये काम, और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने मैं एक सेकंड में ये आई थिंक आ रहा है प्रॉब्लम, वॉइस का ही प्रॉब्लम आ रहा है जी। तो मैं ये चाहूंगा कि आपने ये प्रैक्टिस जो है दिन को करनी है,
और रात के लिए आपने फिर उसको फ्रेश वाटर, पहले उसकी जो है आपने उसको ड्रेन करना है, 2 दफा ड्रेन करना है, उसके बाद आपने फ्रेश वाटर, रात को आपका फ्रेश वाटर चले। तो ये प्रैक्टिस आई है अभी, इस प्रैक्टिस का आप लोग हमें फिर रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। तो मैं अभी कह रहा था मिस्टर अमीर हुसैन हमारे साथ हैं। जी अमीर हुसैन, आप सुन रहे हैं? जी जी सर, सुन रहा हूँ। अच्छा अमीर साहब, आप बताएं आपका क्या एक्सपेरिमेंट है ड्यूरिंग दिस सीजन नाउअडेज, जब देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, लॉट ऑफ टेम्परेचर इन द शेड, तो आप लोग क्या करते हैं जब आपका 31 प्लस टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी जो है 95 एक्सीड कर गई है? तो मैं ऑलरेडी, मैंने मेरे जो सेशन हुए हैं डॉक्टर वेंटिलेशन ग्रुप्स में, हमने आपको कुछ चीजें बताई हैं, आप अभी क्या इम्प्लीमेंट किया है और आया क्या वो जो हमने आपको बताया है उसका कोई इफेक्टिव हुआ है आपका कोई? जी अस्सलाम वालेकुम सर, अमीर हुसैन सुपरवाइजर। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। असल में जो आजकल एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, जिसमें मतलब टेम्परेचर भी बहुत हाई है और मतलब ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें सर अभी हमारे पास जस्ट एयर स्पीड का ऑप्शन है कि उसमें मतलब हम एयर स्पीड को मैक्सिमम करें, तो जिससे मतलब बर्ड का चिलिंग इफेक्ट है या मतलब बर्ड्स का फीलिंग टेम्परेचर है, मतलब ना एयर फ्लो हमने उसको ज़्यादा देना है। तो सर जिस तरह से आपने सजेशन दी है कि 40 फुट के एरिया पे जो हम एयर डिफ्लेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो सर माशाल्लाह उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मतलब बर्ड जो है ना उससे मतलब काफी कंफर्टेबल जो है ना फीलिंग्स आ रही हैं। और अभी सर जो आपने मतलब एक्सपेरिमेंट बताया है वो सॉल्ट वाला, तो अभी सर मेरे पास तो जो है ना मतलब वो शिफ्टिंग होनी है 1-2 दिन तक, तो मैंने सर अभी वो जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो इंशाल्लाह सर वो जो हमारे दोस्त हैं या मतलब उनसे, या मैं कोशिश करूंगा अगर कल हो सका तो इंशाल्लाह वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन अभी सर मतलब जो एयर डिफ्लेक्टर्स हैं हर 40 फुट पे जो हम मतलब उसको लगा रहे हैं, तो जिससे मतलब एयर स्पीड मैक्सिमम हो रही है और मतलब बर्ड का जो इफेक्ट है, मतलब जिसमें हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो है ना मतलब वो ज़बरदस्त है और 110 के राउंड अबाउट ही तकरीबन रह रहा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उससे सर काफ़ी जो है ना अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरे साथ डॉक्टर आसिफ रहो हैं। सर डॉक्टर, इमरान साहब, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, माजरत। जी मैं जी थोड़ी सी कुछ एडिशन करना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जी प्लीज। अच्छा सर, मुझे ये समझ लगी है कि आप ये इसका शैम्पू और साल्ट का कुछ बता रहे थे, मतलब इसके यूज करने का, कि उसके लिए ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। जी जी। अच्छा सर, इसमें अच्छा ये ये है आपके कि लिए, थोड़ा सा जी जी आप बताएं प्लीज। जी जी सर, थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा कंसर्न थोड़ा लग रहा है कि उसमें ये है कि इसमें शैम्पू के अंदर बेसिकली फास्फोरस होता है। ये फास्फोरस का प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये एक वो पानी के अंदर एक वो एल्गी और फंगस वगैरह जो है ना उसको प्रमोट करता है, और ये मतलब पानी के अंदर भी इवन, और उसके अलावा आपके पैड्स में भी जो है ना वो फंगस को इंक्रीज कर सकता है। थोड़ा सा आप इसके थोड़ा सा, मुझे अगर मैं सही नहीं हूँ तो करेक्ट कर दें, इसका कुछ चांस पॉसिबिलिटी है कि मतलब ये प्रॉब्लम बन सकती है शैम्पू को यूज करने से? देखें देखें थैंक यू। मेरी जान, मसला ये है कि पानी आपका, देखें हम लोग वैसे, आपको पता है कि आपको आरओ प्लांट यूज करना चाहिए पैड के लिए भी, या फिर आपको फ्रेश वाटर, हमारा जो एक्सपीरियंस आया है, मैक्सिमम जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने फ्रेश वाटर फ्रॉम द अर्थ हमने लिया है, उसके जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट हमें कहीं भी नहीं मिले। ये उन जगह के लिए है जहाँ पे स्टोरेज है आपके पास, और वहां पे ये उस जगह के लिए आपको है। और दूसरा जो शैम्पू इसमें ऐड किया गया है, शैम्पू इसलिए ऐड किया गया है कि वहां पे जो ऑलरेडी डिपॉजिट्स है, एलजीज है, वो वहां से पानी ड्रेन हो, और उसके हमने ये सिर्फ किया है दिन को, आपने रात को आपने विदाउट शैम्पू, विदाउट जो है सॉल्ट, आपने ये ड्रेनिंग करनी है, ठीक है ना? ये था। अभी मैं डॉक्टर, हमारे साथ डॉक्टर आसिफ राव है, तो मैं थोड़ा सा उनसे बात करके फिर हम जो है, जो मैंने आज आपके लिए जो मैं चीजें लेके आया हूँ, मैं चाह रहा था मैं वो आपसे शेयर करूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं ये चाहूंगा कि हम लोग एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो है, हमने आपको जिस्ट इंशाल्लाह बतानी है। मिस्टर फ्लोरेन का भी मेरा मकसद यही था आपके सामने लेके आने का। अगर कोई आपके पास सवाल है तो वो काइंडली आप रेज हैंड करेंगे या हमें मैसेज करेंगे तो आपको हम मौका देंगे, आप इनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं अभी डॉक्टर आसिफ राव को उनका मैं माइक ओपन करता हूँ। मुझे वैसे ये है, प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर सारे लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि
ये अपना मसला ही रहो, क्योंकि इस पे बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है ये म्यूट एंड अनम्यूट। जी डॉक्टर सर, आपका एक सेकेंड। पैड दी कूलिंग एफिशिएंसी बताओ। जी डॉक्टर साहब, आपका आप सुन रहे हैं? डॉक्टर आसिफ साहब राव। हेलो डॉक्टर आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम। सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी सर, डॉक्टर आसिफ नाम है मेरा, बेसिकली मुल्तान से ताल्लुक है। वो उस दिन सर ग्रुप में भी यही सवाल रेज किया था, एक जो अभी डिस्कस हो रहा है इस वक्त, जी क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी लेवल भी हाई है और टेम्परेचर भी। तो उस वक्त यही डिस्कशन हो रही थी आपसे कि जो एयर रिफ्लेक्टर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम 40 to 50 के ऊपर आप बता रहे हैं, अगर हम उसे यूज करते हैं कम के ऊपर, मतलब उस शेड के अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो 20 से 25 उसकी मतलब डिस्टेंस था दरमियान में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा बर्ड के ऊपर। और दूसरा ये कि उस शेड के अंदर ऑलरेडी जो जितनी मतलब फैन कैपेसिटी थी वो हम उसे रन कर रहे थे, मतलब तकरीबन जो एयर स्पीड बनती थी वो 650 प्लस थी। और तो उसमें उसमें उस उसमें वक्त उसमें जब 650 थी, आपकी डस्ट वगैरह तो नहीं थी उसमें, उस एनवायरनमेंट में? नहीं, डस्ट वगैरह नहीं थी। इवन उस वक्त जो ह्यूमिडिटी लेवल वहां पे था वो 87 प्लस था राइट। और टेम्परेचर 32 था। अच्छा, फिर आपने वहां पे जो आपने आपकी वेंटिलेशन आपने बताया, तो उसमें फिर कितना टाइम लगा आपका, आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ? उसमें सर जो हमने किया था वो ये किया था कि पैड की जो मैनेजमेंट थी ना वो थोड़ी सी चेंज करके देख की थी। मतलब पहले था वहां पे 7 मिनट के बाद ना तकरीबन कोई 7 मिनट ऑफ था और 1 मिनट ऑन था, तो टाइम जो पैड का था वो डिक्रीज किया था, मतलब जो ऑन टाइम था ना उसका जी 1 मिनट से वो 40 सेकंड पे कर दिया था। उसे ये हुआ था कि ह्यूमिडिटी तकरीबन 5 to 7% तक डाउन हुई थी, लेकिन टेम्परेचर में थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हुआ था, मतलब 0.3% तक 0.3 उसमें इंक्रीज हुआ था, जो ह्यूमिडिटी 32 चल रहा था। नमी कितनी डाउन हुई थी आपकी? 5 to 7%। और टेम्परेचर? टेम्परेचर 3 पॉइंट इंक्रीज हो गया था, 0.3 मतलब 32.3 हो गया था। तो आपका वहां पे जो है एयर रिफ्लेक्टर्स डिफ्लेक्टर्स जो लगे हुए हैं, वो 20 फीट पे हैं, 40 फीट पे हैं? नहीं, वो सर 40 फीट पे नहीं थे, मैं यही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि वो थे तकरीबन 20 के ऊपर, 20 फीट डिस्टेंस था। तो उसी का मेरे ख्याल में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था कि मतलब क्या नाम है, मुंह खोल रहे थे बिल्कुल वहां पे ना, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे उस जगह पे। और ये आपने जो पलियां लगाई हुई थी, ये कितनी, इसकी हाइट कितनी थी, फ्लोर से हाइट कितनी थी सर? फ्लोर से जो हाइट बनती थी वो तकरीबन इनकी बन जाती थी 8.5 तकरीबन हाइट टोटल थी शेड की, और जो पल्ली लगी हुई थी उसकी हाइट थी 4 फीट। राइट। हाँ जी। मतलब इट मींस के नीचे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया 6.5 फीट बच गया? नहीं सर, 4 फीट बच जाता, 4.5 बच जाता था, जो नीचे एरिया बच जाता था पल्ली के बाद। अच्छा, नीचे फ्लोर तक जो है। जी जी। अभी आपने इसको 40 फीट पे किया है? जी सर। अभी 40 फीट आपने किया है, इसका डिस्टेंस 40 फीट पे किया है? 40 फीट पे किया, कुछ एरियाज के अंदर हमने 40 पे किया करके देखा था, वहां पे बर्ड थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट में था। मतलब अगर हम जो कर रहे थे 20 फीट के ऊपर कर रहे थे, वहां पे अगर देखते थे तो बर्ड ज्यादा मुंह खोल रहे थे वहां पे। जो हमने 40 फीट के ऊपर किया हुआ था वहां पे बर्ड मुंह उसके निस्बत मतलब 20 की निस्बत कम मुंह खोलते थे, लेकिन अच्छा ज्यादा जो इम्पैक्ट अच्छा। आया था वो। जी जी सर। जी। अच्छा सर, मैं अब ये चाहूंगा, आप सब लोग सुन रहे हैं, ये बड़ा क्रिटिकल मसला है ड्यूरिंग दिस सीजन में,
इसका एक तो मैंने ये एयर स्पीड और ये एयर रिफ्लेक्टर्स ये चीज की थी। तीसरी चीज मैं आपको आज टिप दे रहा हूँ, ये स्पेशल टिप है कि आप लोग एक तो अगर आप अपने फैंस के आगे कोन्स बनवा के लगा लें, कोन्स, ठीक है सर, जी जी उससे आपका 10 से 15% जो है एफिशिएंसी, आपको पता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी फैन की। ठीक हो गया सर। और दूसरा, जिस 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 के हाउस में अगर लेयर है, ब्रीडर है, क्योंकि ब्रॉयलर में तो एयर ट्रैप्स नहीं लगते, एयर लूवर्स जो होते हैं वो नहीं लगाते हम ना, लेकिन लेयर में और ब्रीडर में हम लगाते हैं एयर लाइट ट्रैप्स जो होते हैं, जिसे जी लूवर्स भी जी कहते हैं आप लोग। तो वो अगर लगे हुए हैं तो फिर आप जिसके भी हाउस में लगा हुआ है वो 15% अपनी एफिशिएंसी कम कर ले अपने फैन की। बिल्कुल। ये आप लोग नोट कर लें इस चीज को कि अगर यहाँ पे अगर ये लगे हुए हैं तो आप ये समझ जाएं कि आपकी 15% जो है एफिशिएंसी कम होगी उसकी, ड्यू टू द बैरियर। ये जो बैरियर्स है ना, तो अगर आप इसी तरह अगर आप, क्योंकि मैं ये इसके ऊपर काफी सोचता रहता हूँ, काफी एक्सपेरिमेंट भी कराता रहता हूँ। अभी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट डॉक्टर साहब ये जो निमक वाला है, ये अब इसके रिजल्ट अभी आप लोग देंगे। वैसे तो काफी जगह रिजल्ट जो है ये अच्छे आए हैं, लेकिन आप लोग अपना भी एनालिसिस करेंगे डेफिनेटली। तो दूसरा ये मैं कौन का कह रहा हूँ, कौन के लिए ये है कि आप इसके लिए आप सिंपल आप जो है जीआई शीट जो है उसको आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल या इसके आगे जिस तरह आपके पास देखें, आपके पास आपको अगर आप बना लेना जिस तरह डक्ट होती है आपकी, हीटर की जी जी डक्ट है बिल्कुल ना आपकी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे एक जो है एक अच्छी थिकनेस वाली आप प्लास्टिक लेके उसकी डक्ट बना के आप वो उसको लगा लें अगर, क्योंकि आप लोगों के जी जी सारे अगर अगर आपके गेबल फैंस लगे हुए हैं और जिसके ऊपर जो है वो सिंपल, जिसके ऊपर जो है वो आगे नहीं है उनके, तो उनके लिए जो है ना आप ये डक्ट लगा सकते हैं, ये फोन फोन जी। जिसे कह रहे हैं। तो इससे आपका दूसरा आपके सबका जो है ना आपका 15% आपकी एफिशिएंसी वैसे ही बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी हम लोग काफी जो है हमारा ये प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर हरमन, डू यू लिसन मी? Yes, yeah, I did. Yeah. Actually, Mr. Herman, nowadays we have a very big problem of this humidity and temperature, where, in general practice, when the humidity is low, temperature is already low. Do you listen? Hello? Can you repeat? Yes. Actually, the normal days when the humidity is high and temperature is low. Yes. But nowadays, when the outside humidity level is already increased, so that nowadays in our sheds humidity is are already high and temperature is already high. Yeah. And the second thing is that the general phenomena of the humidity is, if the humidity is decreased 5%, that is inversely proportional, and the temperature is already decreased 1 degree centigrade. I think you know very well. You mean the temperature is high and the humidity is high? Nowadays. Yes. And in normal days, when we decrease the humidity 5%, then temperature is already decreased 1 degree centigrade. By just bringing in fresh air. Yes. Yes. In And normal days, but nowadays, if you could decrease the humidity, but temperature is not low no. And because of the extreme of humidity. yeah. Yeah. When There's the no humidity level is increased to 80%, then this phenomena is finished. yeah. Yeah. So what we do here, there's not so much you can do about it at the end of the flock. We do reduce the density, so we do thinning. We're taking out, let's say, 10% of the birds before all the birds are going out of the barn.
then the existing birds have more space. And you know, the birds are producing a lot of heat themselves. So we need ventilation. And when it's very humid, yeah, and you're using maybe pad cooling, that brings in even more humidity in the house. That can be a disaster. When the temperature is high and the humidity is high, you can only increase the airspeed, so they have a kind of chill effect, and to avoid panding, you know, that the birds are breathing very well. But it's a dangerous situation, and there's not so much you can do about it. I mean, they're producing humidity, they're producing heat. Outside is hot and high level of humidity. You only can do reduce the number of kilograms per square meter, I think. For ventilation, the computer has no. It's obviously that if you decrease the density, you have a more space, and definitely the bird generate the heat also. Yeah, yeah. If you minus some heat generators, then your problem will be solved, I think. Yeah, yeah. Especially in areas where the humidity is high outside, then there's not much you can do. So come to the please come to my lecture. If you allow me, I want to start my today lecture regarding the ventilation. So why we ventilate? What is the importance of the ventilation? So now we are discussing. ये सब जितने participant हैं, ये हम importance of the ventilation पे discuss कर रहे थे. मेरा style जो है different है. Actually, Mr. Herman, my style of education is different. I just discuss, I know the advices of the people, and then I tell him that what is the right, what is the wrong. So we will, inshallah ta'ala, now please allow me, I start my today lecture. So, just a minute, sir. So this is our course, poultry house ventilation for environmental control poultry houses. The EC for environmental control poultry houses. But also we discuss here natural ventilation for non-control poultry houses. No? We also discuss here. Just a minute, I will off all the participants. Would you allow me? I will mute all the participants because there's no any disturbance. Yes. Yeah, I think. So this is our main course. We design ventilation for poultry houses. So the question is that why we ventilate? So this is basic climate basics. Today we discuss. आज हम जो है वो बेसिक क्लाइमेट पे डिस्कस करेंगे. हम इसी पे डिस्कशन कर रहे थे और हम वेट भी कर रहे थे कि इस तरह हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं वो ज्वाइन कर लें हमें. And we are waiting for the participants. That's why we are discussing. We discuss Mr. Foreign and discuss. And मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सफदर साहब का कि वो भी आए. उन्होंने भी अपना मैसेज दिया हमें. तो हमारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स पे. आपको हम बताएंगे. तो पहली चीज है कि Mr. Sharma, you just please read. That's why I interrupting this. Okay, interpret this one also. So you please read it. So why we ventilate? Yes, you just read because I am speaking in Urdu. Okay. Okay. Why we ventilate? So yes. Yes. Okay. To get a bird to grow, they have to eat. Yes. They don't want to eat or use their energy to grow if they are stressed, uncomfortable,
or excited. So this is the main thing, that why we ventilate. Yeah. And why minimum ventilation? Why minimum ventilation? Yes. First of all, to bring in oxygen. Yes. Yes. Not to reduce the Remove- temperature, because that's not the reason. We have to create a high temperature. So we have to bring in Definitely. oxygen. The birds producing CO2, and instead of that, we have to replace the earth by fresh air. The second point is to remove harmful gases, the CO2, for instance, and ammonia. And third point is to remove also moisture. In the beginning, I explained it already. The problem is Yes. young animals with the heating, the type of heating will produce also moisture. So we Yes. have to replace that. तो हमारा मेन जो है, हम क्यों वेंटिलेशन करते हैं कि हमें चाहिए होती है, बर्ड के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, फ्रेश एयर चाहिए होती है। उस वक्त हमें टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी आउटसाइड टेम्परेचर जो होता है वो इतना कम होता है कि वहां पे हमें प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पे आवाज साइलेंट फिर मुझे करना पड़ गया कि ये किसका खोले। अच्छा, काइंडली अपने माइक म्यूट रखिए जी, ठीक है ना, थैंक यू। तो ये हमने एक तो वेंटिलेशन आपको बता दिया कि फ्रेश एयर के लिए वेंटिलेशन करते हैं, उसमें क्या करना होता है, हमें टेम्परेचर जो है उस पे हमें टेम्परेचर के लिए, गैसेस के लिए, वो तो हम वेंटिलेशन करते हैं उसके लिए, ठीक है, मॉइस्चर के लिए। लेकिन मिनिमम वेंटिलेशन उसका करते हैं कि हमें फ्रेश एयर चाहिए होती है, और फिर हमने जो है वहां पे, क्योंकि डायरेक्ट वेंटिलेशन और कंटिन्यूस वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, तो वहां पे हमें जो हार्म गैसेस होती हैं ये सारी इसको रिमूव करना होता है, ठीक है। फिर हम मॉइस्चर, डेफिनेटली मॉइस्चर का भी प्रॉब्लम होता है, तो ये हमें उस वक्त हमें जरूरत होती है। तो हम लोग ये, तो दूसरा ये कंप्लीट वेंटिलेशन सिस्टम जो है, सो व्हेन वी ventilate the birds and when we need a proper ventilation system, प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें। माइक किसके ऑन है? माइक जो है ये मैं म्यूट करता हूं, लेकिन फिर कोई ऑन कर लेता है वहां से माइक। मिस्टर इब्रार आपका ऑन था, चलो मैंने। तो डेफिनेटली हमें जब वेंटिलेशन की अहमियत का अंदाजा हो गया कि वेंटिलेशन हमें किस लिए हम वेंटिलेट करते हैं बर्ड्स को, और वेंटिलेशन एक तो ये होती है कि फ्रेश एयर हमें देनी होती है मिनिमम वेंटिलेशन में। दूसरा ये होता है कि वेंटिलेशन जो है, जब आपका हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर हो तो आपको टेम्परेचर बेस पे आपको वेंटिलेशन करनी पड़ती है कि बर्ड को जो उसको एज ब्रीड पे उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो एनवायरनमेंट उसको मुहैया करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कॉल डीसी हाउसेज एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउसेज। तो हमें वो खुद डेवलप करना होता है। तो कंप्लीट वेंटिलेशन सिस्टम जो है, उसमें द बेस्ट वेंटिलेशन सिस्टम जो डिजाइन होता है ताकि हाउस का जो है एक ऑप्टिमम हाउस हो, एक स्टैंडर्ड और एक जिसे आप कहें कि आपका जो रिक्वायर्ड है वो आपका हो, ये इसलिए वेंटिलेशन सिस्टम बेस्ट डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सेकंड, इसके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है वेंटिलेशन का, कि एक तो एयर टेम्परेचर जो है और एयर ह्यूमिडिटी है, इसको एक आइडियल लेवल पे जो हमें 60-65 डिग्री जो होता है, 65% है हमें नमी चाहिए होती है। तो और टेम्परेचर जो हमें उसका एज वाइज हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए हम उसको, तो दूसरा ये होता है कि प्लस हम रिमूव करते हैं गैसेस को, मॉइस्चर, एवरीथिंग। तो जी नवाज अहमद, आप प्लीज वेट करें, अब मैं ये थोड़ा लेक्चर खत्म कर लूं, देन आई विल बी गिव यू टाइम। और दूसरा जो है कि हमें एक इंश्योर होता है, हमें एक इंश्योर चाहिए कि द एयर एक्सचेंज इन द हाउस सो दैट फ्रेश एयर ऑलवेज सप्लाइड। तो एक ये एयर एक्सचेंज जो होता है, ये एयर एक्सचेंज मिनिमम वेंटिलेशन में ही होता है, क्योंकि जर्नल जब आपकी साइड मोड वेंटिलेशन चल रही है, ट्रांजिशनल चल रही है और टनल वेंटिलेशन चल रही है, देन आपको कोई जरूरत नहीं होती।
तो ये मिनिमम वेंटिलेशन में आपको होता है कि आप कम से कम एक जो है आप एयर एक्सचेंज जो है वो आप 2-3 टाइम जो आपका है वो आप डिसाइड करते हैं, लेकिन बेस्ट जो है 5 मिनट का साइकिल इज द बेस्ट फॉर द मिनिमम वेंटिलेशन. Prettige vakantie, hè? सो दूसरा ये है, उसके बाद ये है कि एक दूसरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर. हमें इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी अगर साइड बोर्ड पे इनलेट की तरफ से वेंटिलेशन हो रही है तो एक यूनिफॉर्म वेंटिलेशन हो, आपके इनलेट्स लेवल्स हो, अगर वो 1 इंच खुले हैं या 2 इंच खुले हैं एट पर रिक्वायर्ड ऑफ द नेगेटिव प्रेशर, अगर वो उस पर सेट है या अगर आप उसके ऊपर नहीं सेट हैं, तो इसमें मैं आपको थोड़ी टिप दे दूं कि आप लोग आपको चाहिए ये है कि आपने इनलेट जो है जब हवा आए तो आप आगे जो है धागे लगा लें, ठीक है, या पुराने टेप की कलियां लगा लें और आप देखेंगे आपकी जो हवा है वो सेंटर ऑफ हाउस पे जा रही है. Mr. Doran, I just gave a tip that in sideboard ventilation or minimum ventilation, if you have not a negative pressure sensor, so you can put the threads on the top of the roof and center of the house, and then you check that if the threads are moving, it means your air is directing to the center of the house. Yes, it's very important for minimum ventilation that you have the right airspeed, how the air enters the building. When you have air inlets on the side, like in my picture on the back of me, Yes. side inlets, and in the winter, cold air is more heavy than warm air, okay? So when the incoming air has a low speed, it comes in and drops immediately on the birds, which are located along the side of the building. And that's what we don't want. We want to have the cold air which comes in has to be mixed gently with the air which is in the ceiling of the house, and then it will be mixed and go to the birds. Yes, So, we will discuss this. We will discuss this. Just the next point is to prevent the animal from suffering any harm in case of a power failure or other failure. So this is very important that in Pakistan there's no 24-volt operated system, yet battery operated systems for the inlets. okay. You know, Mr. Yes. So I just brief my students that ये पाकिस्तान में आपके जितने भी सिस्टम लगे, अगर पावर फेलियर आपका हो गया तो उस वक्त आप लोग भागना शुरू कर देते हैं, आपने खिड़कियां खोलनी है, आपने आपके विंडोज हैं अगर आप हैं तो वो आपने खोलते हैं क्योंकि उस वक्त आपका एक ड्राफ्ट डेवलप हो जाता है. जबकि ये कुछ कंप्यूटर्स हैं हमारे यहाँ, ये मिस्टर हार्मन है, इनके कंट्रोलर्स हैं, एप्टिकॉम के कंट्रोलर्स हैं, बिग डचमैन के कंट्रोलर्स हैं और दूसरे कंट्रोलर्स हैं, जहाँ पे वहाँ पे एक ऑटोमेटिक इनलेट कंट्रोल होता है और वो नेगेटिव प्रेशर बेस पे होता है, या फिर आप उसकी सेटिंग कर लेते हैं एलपीवी कर्व बना के. एक लो प्रेशर कर्व होती है ये साइड बोर्ड वेंटिलेशन के लिए, जो डिजाइन होती है टारगेट मिनिमम वेंटिलेशन पे, टारगेट पास्कल पे डिजाइन होती है, टारगेट एयर प्रेशर पे डिजाइन होती है. तो वो उसमें ये होता है कि आप लोगों के लिए आप बर्ड को एक आपकी जितनी फैन एक्सर्शन बढ़ती रहती है, आपके इनलेट भी उतने साथ साथ खुलते रहते हैं, ठीक है. तो वो एयर का एक तो ये होती है कि जब चिक है आपका तो बर्ड डायरेक्ट आपका नहीं आता, वहां पे बर्ड पे हिट नहीं करती हवा. और इसी तरह जब टेम्परेचर बेस पे आपके फैन एक्सर्शन ऐड होते रहते हैं तो आपकी इनलेट खुलते रहते हैं और उसको वो ही डिजायर्ड टेम्परेचर आपका जो है वहां पे मिलता रहता है. और दूसरा ये है कि ये इमरजेंसी ओपनिंग बात हो रही थी कि इनलेट जब आपका पावर फेलियर होता है तो इनलेट्स के साथ एक 24 वोल्ट इनलेट्स बेंच होती है, ये ऑटोमेटिक मोटर होती है 24 वोल्ट की बैटरी ऑपरेटेड. तो वो बैटरी ऑपरेटेड एकदम स्विच ओवर हो जाती है उस पर, जिस तरह आपका यूपीएस सिस्टम घर पे काम करता है. तो ये बेंच जो है मोर देन 100 इनलेट्स को ये ऑपरेट कर सकती है, 120 इनलेट्स ये जो बेंच है. और ये इनलेट आस्ता आस्ता पूरे हाउस के इनलेट खोल देती है, तो आपका वहां पे ड्राफ्ट नहीं होता. ये आई थिंक ये यहाँ पे किसी कंट्रोल शहर में बहुत कम है, सिंपल कोई खास जो सेट है वहां पे है, उनका वहां पे है.
अच्छा उसके बाद जो है एक प्रोडक्शन के लिए भी रिजल्ट ओरिएंटेड है ये। अच्छा ये इंट्रोडक्शन आ गया, मैं इसको बता रहा था। तो जितने भी आजकल दुनिया में जो है वेंटिलेशन की इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ गई है कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। आपकी बर्ड पर कैपिटा जो है वो बढ़ गया है आपका। तो उस वजह से भी ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट जब बढ़ी है तो फार्मिंग जो है एक बिजनेस बन गया। आफ्टर 80 तो ये बिजनेस पे गया, बिजनेस पे डेवलप जब हुआ तो फिर इसको जो है वहाँ पे डेफिनेटली ये बढ़ता गया। अभी इतनी डिमांड है हमारे पाकिस्तान की और इसके बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन की। तो ये तो बर्ड जितने भी आजकल जितने हाउस बन रहे हैं वो सारे जो हैं ये मैकेनिकल ऑपरेटेड और एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑपरेटेड हाउस। तो ये इंट्रोडक्शन है आपके सामने है, ये फ्लोर पे है और ये केजेस पे है आपके। तो ये जो केज नजर आ रही है ये फ्री केजेस है, ये यूरोप में यूज हो रही है। यूरोप में केजेस एक्चुअली केजेस खत्म हो गया। मैं 2014 में जब मैं गया जर्मनी तो उस वक्त मेरी बिग डच मैन जो था उसके जो मिस्टर बर्नर्ड है तो उसने मुझे बताया, उसने हमें बताया, उसने कहा कि हम लोग हमारा बिजनेस फेल हो गया था 2013 तक, क्योंकि हमारा जितना भी था हमने हमारे हाउस जो है सेटअप हो गए थे, नई एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही थी। तो 2013 के एंड में एक रूल आया कि फ्री केज का। तो वहां पे जितने भी केजेस थे जो हमारे यहाँ 2x2 के केज होते हैं, 5 टियर 5 रो 6 टियर 7 रो इस तरह, तो वहां पे सब ने वो उसके बैन लग गया। तो वो कह रहा है कि हमने इतना वहां पे जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट किया कि पूरा जितना यूरोप था वहां पे वो केज चेंज हो गया। जो फ्री केज है इस केज में ये है कि बर्ड एक साइड से मूव करके नीचे फ्लोर पे भी आ जाता है। तो ये आपको मैं दिखाने का मकसद था। ये यहाँ पे ये जो है ये केज पाकिस्तान में है। तो ये केज जो है आजकल बैन हो गए हैं ना। ये पास्ट और प्रेजेंट का मैंने एक लिया है एक थोड़ा सा, मैंने कहा आपको थोड़ा सा कर दूं कि अभी क्योंकि ये बर्ड की जो है ग्रोथ रेट राइज हो गया है, एग प्रोडक्शन राइज हो गई है ड्यू टू द फीड। तो ये अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है ब्रीडिंग में और फीडिंग जो एनिमल्स हैं कि एक तो फीड कमर्शियल वाइज है और स्पेशल फीड इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें। तो आपका ये है कि वहां पे आपकी अच्छी प्रोग्रेस आती है। तो ये एक कमर्शियल भी है फीड की। अगर आप फीड आपका बर्ड जो है 40 डेज 40 दिन में अगर इसका वेट जो होता है 2 kg हो जाता है और फिर कन्वर्शन इसकी 1:1.75 है, तो दिस इज द बेस्ट। ये एक लेइंग हैन प्रोड्यूस जो है बिटवीन ये 300 से 330 एग्स पर ईयर और फीड कन्वर्शन इज अबाउट ये 1196 पर kg egg mass. The hen produce about 20 kg of egg mass per hen housed. तो ये एक आपको उसने एक वीक ऑफ द लाइफ बताई है उसकी। और उसके बाद साथ उसने परफॉर्मेंस है पर हैन उसकी एक थोड़ा सा चक्कर। ये एक जनरल आपको व्यू मैं कर रहा हूँ, बाद में ब्रीफ करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो लेटेस्ट जो है हाउस आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं कि आपके ये जो फैन साइड है फ्रंट साइड है और बैक साइड आपका रियर साइड है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, फैंस हैं और इसके साथ ये सारी चीजें हैं। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं इस क्लास में, मैंने वो अपना जब डेवलप कर रहा था, ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो वो मैंने उनका भी ख्याल रखा कि उन्होंने अभी तक वो कंट्रोल हाउस पे नहीं गए। अभी तक वो जो है सेमी कंट्रोल और जो है वो पुराने जो हमारे हाउस हैं वो उस पे हैं, तो वो लोग नेक्स्ट जा रहे हैं उस पे। तो ये उनके लिए मैंने एक व्यू दिया है। डेफिनेटली एक बर्ड डेवलप होता है अगर उसको एक आइडियल कंडीशन, आइडियल एनवायरनमेंट मिले। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल हाउस में तो यही चीज है कि आपको एक आइडियल आपने करना होता है फॉर द वेल बीइंग ऑफ द बर्ड। अच्छा इसका एम क्या है? एम एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम
इनकी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये पूरा व्यू है जनरल कंट्रोलर्स, इसके साथ जो सिस्टम लगे हुए हैं, इसके साथ फैंस हैं, इसके साथ जो है आपके ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये इसमें देखिए राइट साइड पे 2 नंबर पे ये जो बेंच नजर आ रही है 24 वोल्ट की बेंच है, और इसके साथ फिर फोगिंग सिस्टम्स हैं आपकी, जो है नमी को कंट्रोल करने के लिए 60-65 से अगर कम हो जिस मौसम में तो वो 45 पे ऑन हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट टाइम आप आए तो आप जो है ना, वो जो आपको हमारा वेंटिलेशन चार्ट जो हाइको का है वो आप लाजमी लेके आए, क्योंकि उस पर जो काफी चीजें हमारी डिस्कशन होगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्लाइमेट का जो है मेन जो कंपोनेंट्स हैं इसके, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, मेन चीजें हैं। टनल क्लोजिंग जो है, ये रैकेट पिनिंग सिस्टम इसको कहते हैं। ये 2005 में हमने इस्लामाबाद फार्म्स का एक शेड था वहाँ पे, मखदूम एक्सचेंज के पास, वहाँ पे 14 हाउस थे उसके, वहाँ पे लगाए थे हमने। तो मिस्टर वर्नर थे मेरे टीचर ऑस्ट्रेलिया के, मिस्टर वर्नर ग्रैंडमैन, वो पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। तो ये इनलेट्स और ये FSC फ्रेश एयर चिमनीज जो है ये, अच्छा मैंने यूरोप में देखा है ये चिमनीज का बड़ा इस्तेमाल है। वहाँ पे सिंगल स्टोरी शेड है, और सिंगल स्टोरी शेड है और उसमें चिमनी उन्होंने रखी हुई है। आपको पता है ना, गैस तो गर्म आवाज ऊपर जाती है, टॉप पे जाती है, तो हम लोग तो थ्रू जो है इनलेट और एग्जॉस्ट फैन से उसको करते हैं, जबकि वहाँ लोग उन्होंने छत के ऊपर ही लगाए हुए हैं। बल्कि उन्होंने ये किया हुआ है कि वहाँ पे एक तरफ चिमनी जो है वो इनलेट ओपन होते हैं, वहां से हवा आ रही होती है, और दूसरी तरफ जो है वो ओपन होते हैं, वहां से हवा, वहां से जो है गैसेस और सारी चीजें वहां से वो निकल रही होती है। और इसी तरह ये सारा सिस्टम डेवलप किया है उन्होंने। और ये प्रोडक्शन में देखिए वाटर मीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फीड की ये मुख्तलिफ जितने कंट्रोल्स हैं उसमें, ये फीड प्रोग्राम, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं, एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेशन, ये शिफ्ट हो चुकी है। और ये फीड वेइंग है, लाइट कंट्रोल, ये भी सारा ऑटोमेटिक है। आप अभी हमने लक्स जो है इसके कम करने वाले स्पेशल हमने हॉलैंड से मंगाए हैं, वो हमने लगाए हैं, उससे भी ऑटोमेटिक लक्स आप उस पर वो फीड कर देते हैं, वो हो जाता है। तो डिफरेंट कंट्रोल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें बेसिक मोड है और एक सिंपल स्टेज कंट्रोल है, ठीक है ना। हमारे यहाँ सिंपल जो बेसिक हमारे पास तो अभी जो उसमें बी बैंड है, पी बैंड जो है उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं है। अच्छा, मैंने अपने अपने क्लास में लोगों को बताया था कि इसमें जो है मुख्तलिफ फ्लेक्सिबल मोड भी हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी को कंट्रोल पे ये है कि जब आपकी डिजायर्ड ह्यूमिडिटी जो सेट आपने की उससे जो ही बढ़ती है आपकी, तो वहां पे आपका फैन ऐड हो जाता है। अच्छा, मैं दूसरा मुझे ये भी है कि मैं इसको मैं चाहूंगा कि मैं जस्ट अ मोमेंट, मुझे आप एक सेकंड दीजिए। मैं Mr. Herman, do you hear me? Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Now we are discussing the different control principles: basic mode, flexible mode, simple stage, P band, and the other one. Yes, this Profi Meter is also now it's new. PID control is already multi-step systems. ये सारे हैं कंट्रोलर्स में जो आजकल लेटेस्ट कंट्रोलर्स आ रहे हैं। शायद आपने PID कंट्रोल्स का आपने नहीं सुना होगा, और उसके बाद आपने ये मल्टी स्टेप सिस्टम्स और ये प्रोफी मोड और ये जितना भी है ये आपने शायद नहीं सुनी होगी। और आजकल जितने भी कंट्रोलर हैं उनके साथ ये मिस्टर हरमन ने ऑलरेडी किया है, उनके पास वो इंस्टॉल है इनके मोबाइल पे, फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, फार्म ऑनलाइन सिस्टम, जिसमें ऑलरेडी सारी कर्व्स होती हैं, आपको एक पूरा व्यू मिल जाता है उसका ना। ये जितने कर्व्स हैं उसमें ये सारा प्रेशर कंट्रोल, उसमें आप चाहें तो प्रेशर कंट्रोल एक्टिव कर दें, चाहें तो बंद कर दें। तो ये मैं आपको एक वेंटिलेशन का एक पिक्चर, ब्रॉड पिक्चर बता रहा हूँ कि दुनिया इस वक्त जो है कहाँ पे पहुंची हुई है। सारी चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हैं और सारे प्रिंसिपल हैं, और उसमें आप लोगों का जो फोकस रह जाता है वो मैनेजमेंट में रहता है, और आपका ये फोकस रहता है कि आप शेड में जाएं और आप वहां पे फील करें कि व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ योर बर्ड। आप ख्वाह डॉक्टर हैं, ख्वाह वर्कर हैं, ख्वाह सुपरवाइजर हैं, आप जो भी हैं, लेकिन जब तक आप जाएंगे नहीं वहां पे, तो ये चीजें आपको सिर्फ दिखाने के लिए हैं। ये आपको पता हो कि ये बेसिक कंट्रोल तो ये चल रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको वहां पे चेक करना पड़ता है।
अच्छा नेक्स्ट जो है एक ये है कि कुछ हाउस में अभी फ्रंट और रियर जोन कंट्रोल आ गया। आपका आधा हाउस जो है वो एक उसकी अलग सेटिंग है, नेक्स्ट हाउस उसकी सेटिंग है। जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस साइड पे लीकेज है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम होता है फ्रंट पे रियर पे, तो अभी जो ऐसे ऐसे भी सिस्टम आ गए हैं कि आपके दोनों हाउस को फ्रंट और रियर आपके हाउस को दो पार्ट्स में कर दिया। तो एक जो सिस्टम है फैन साइड का जो है सेंटर ऑफ द हाउस तक उसका अलग कंट्रोल है, और डैश जो सिस्टम है उसका अलग कंट्रोल है। तो ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। बड़ा ये हमारा जो है वेंटिलेशन सिस्टम जो है बड़ा मॉड स्क्वाड हो गया है। और अभी इसको अगर फॉलो आप करें और आप करेंगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, बिकॉज क्योंकि अभी पाकिस्तान में सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, लेकिन आज के बाद आपकी एक एक ग्राम की फीट में भी आपका कंपटीशन होगा, ठीक है, जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये रेगुलेशन है हुई। तो एग्जांपल इसकी जो है कि हीटिंग आप सेट पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये इसमें करंट वैल्यू वाई स्टार्ट द हीटिंग एट दिस पॉइंट। तो ये इसमें आप लोग ये सारी चीजें करते हैं, और इसमें ये होता है कि the regulation reacts on the fast falling of the temperature। और दूसरा मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको कहा था कि the senses of the house, the placement, the positioning of the sensors, this is the very important thing। ये बहुत important है आपके हाउस के सेंसर्स की प्लेसमेंट। तो डाउन साइड द फ्लोर 1 meter हाइट इज द बेस्ट फॉर द यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि उसमें आपका ये होता है एकदम अगर वेदर कंट्रोल हुआ तो वो उस पर असर नहीं होता, वो टाइम लेता है उसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी अहम है। फिर नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल आप देखें, दूसरा ये होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए हम लोग जितना काम करते हैं, हम शेड में जो अपने अपने जो सेट करते हैं कि ये टेम्परेचर इस एज पे टेम्परेचर should be selected on the age and breed of the bird, what they require, what they need, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम जब करते हैं तो ये सारी चीजें फॉलो अप होती हैं। तो हमें अगर हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली हमें जो है रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये एक जनरल आपको मैंने ये बताया कि यहाँ पे ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर जो है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे दी हुई है, ये ब्रॉयलर एंड लेइंग हेन्स के लिए। लेकिन डेफिनेटली जब तक आप हमारे यहाँ जो है हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस हमारी 22 और 24 पे है ब्रॉयलर की, लेकिन ब्रीडर को हम लेके गए हैं 20 तक लेके गए हैं हम उसको। लेकिन ये डिपेंड्स करता है कि आपके जब वेदर कैसे है। सर्दियों में आपकी सेटिंग डिफरेंट होगी और गर्मियों में आपकी सेटिंग डिफरेंट होगी। सर्दियों में आपकी डेंसिटी जो है वो बर्ड पर स्क्वायर फुट डेंसिटी डिफरेंट होगी, गर्मियों में आपकी ये डिफरेंट होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ब्रॉयलर का देखें, ब्रॉयलर का दिया हुआ है 0 डे पे आजकल 33 डिग्री की प्रैक्टिस हो रही है, ताकि उसमें अगर जो भी थोड़े से फॉल्स हैं जो वो खत्म हो जाए, ठीक है। और ये 50 से स्टार्ट है और ये 60 75 और ये 40 डेज पे 80 भी हो। तो ये ऑप्टिमम, ये सिर्फ ये जो आपके सामने स्केच दिया है ये ऑप्टिमम उसके लिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये देखें आपको एक कंट्रोलर है, उसके साथ आगे आपका ये वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर ये आउटसाइड टेम्परेचर आपका वो भी फीड कर रहा है, इनसाइड टेम्परेचर और हीट फ्रॉम द एनिमल्स। ये आपको बताएंगे कि ये हर बर्ड की हीट जनरेशन क्या है, क्या करता है, वो कितना पानी पीता है, क्या जनरेट करता है। क्योंकि आपके सबसे पहला जो है हीट, बाहर की हीट को छोड़ के आपके अंदर जो होता है वो बर्ड वो खुद हीट जनरेट कर रहा होता है। अच्छा नेक्स्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, तो ये जो हमें चाहिए होती हैं जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं,
ये ऑक्सीजन का ये देखिए, ये नोट करें आप लोग, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 19.5% जो है ऑक्सीजन जो होती है ना आपकी हाउस एयर में होती है, ठीक है, जो आपके हाउस एयर जो है उसमें 19.5% होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए ये बताया गया है, ये इसका जो है 3000 ppm। अभी आपको पता है कि आजकल हमने यूज किए हैं कंट्रोलर्स जिसमें वो आप इसमें CO2 के और अमोनिया के NH3 के उसमें आप लिमिट दे देते हैं, और जब वो लिमिट से जो इंक्रीज होता है ऑटोमेटिक वेंटिलेशन आपकी एक फैन ऐड हो जाता है। तो आपकी लिमिट 3000 है, 3000 से जो ही 3400 500 हुई तो आपका एक फैन ऐड हो गया और उसने अपने लेवल पे ले गया। वैसे हम 2000 इसको 2002 और 1500 रखते हैं ppm कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए इसका जो है हाउस से 10 ppm होती है। इसी तरह अमोनिया जो है ये भी 10 ppm है, और इसका जो है 25 ppm जो है ये एक ड्राफ्ट है यहाँ पे ये, तो आप 25 ppm से मिस्टर फ्लोरेन Yes. I am discussing NH3 ammonia. I am discussing this ammonia. Yes. You look please here ammonia. Yes. Yep. The quantity of the ammonia in the house air is 10 ppm. Yep. And where here already we are using ammonia sensors. Yeah, we do. Yeah, we use. And Yep. yes. And what level you set ammonia sensors? What is the target you need? To be honest, I don't know exactly. Maybe I can check the ammonia level. What is desired? Okay, no problem. Okay, no problem. I will tell you, no problem. Yeah. The point is to measure ammonia. It is possible today with sensors, the very sensitive sensors, which you have to take out of the house during the cleaning cycle. And what can we do about too high ammonia? Most of the time, the CO2 and the humidity is also too high. So most of the time, you have to increase your minimum ventilation to reduce your ammonia level. Ammonia is very dangerous. Yes. And these all gases, carbon dioxide, carbon monoxide, ammonia, dust, these are due to the mismanagement of ventilation, you know? Yep. And there is a lot of diseases that is due to the mismanagement of the ventilation. So ventilation is the gist, you know, is the biopoultry. Ventilation is the biopoultry. Is the life for the poultry. So Yeah. So generally we said less than 25 ppm. So Yes. if 25 ppm, then no any less than 25 ppm, it's okay. 10 Yeah. to 25, 22, Yeah. 23, 24. But when it up to 25 or 30, it's dangerous. So we will put here, and carbon dioxide we will put general 3000 ppm or 2500 ppm. Just Yeah, I have to advise also not to measure that just on a certain moment during the day with a manual handheld meter, but it's better to have a stationary measurement device in the house connected to the computer, so you have a constant readout of this value and build up data. So next is the minimum ventilation. Yes. Our next chapter. So I already told you why we ventilate and why minimum ventilation. So this is the main phenomena of the ventilation. You look, this is the inlets. ये आप सबको नजर आ रहा है ना जी, inlets हैं, तो air in from the inlets of the house, और ये center of the house को ये कर रही है, ठीक है। ये फिनोमिना इसको जो है इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं, और वीना कंट्रैक्टर इफेक्ट भी इसको कहते हैं। Already this phenomena, Mr. is called
Vena contracta effect. This I read in 20 years before, and I have a lot of discussion with many people. They don't know about the vena contracta effect, so I had a lot of discussion with them. So they देख रहे हैं minimum ventilation का. You just read it. This why we use the minimum ventilation. तो ये bring oxygen लेके आनी है, fresh air लेके आनी है, ठीक है. ये वही है, remove half gases, moisture, ठीक है. को बर्ड को जो चाहिए वो हम उसको करना है. तो मिनिमम वेंटिलेशन अकर्स जो है, ये क्यों होती है मिनिमम वेंटिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेंटिलेशन फिनोमेना उस वक्त होता है जब आपका इनसाइड टेम्परेचर, ठीक है, इज हायर देन द आउटसाइड टेम्परेचर. बात समझ आई आपकी. मकसद ये है डेफिनेटली मिनिमम वेंटिलेशन तब होगी जब आप देख लें. इसकी सिंपल मिसाल जो है, बर्ड जब एक तो जब आप बर्ड आया आपका चिक्स है, उसकी मिनिमम वेंटिलेशन चलेगी, ठीक है ना. और उसके अलावा जो है, जिस वक्त आपका सेट हाउस को रिक्वायर्ड है 24 डिग्री और आपका आउटसाइड पे है 20 डिग्री और लेस देन 20 है, लेस देन 24 है, तो क्या होगा कि आपके फैन जो है थर्मोस्टेटिक कंट्रोल ऐड हो रहे हैं. आप इसमें जो आपके फैन होते हैं वो 0.5 डिग्री 1 डिग्री इस तरह ऐड होते रहते हैं. जब ये टेम्परेचर लेवल हो जाता है आउटसाइड इनसाइड का, तो उस वक्त कोई फैन नहीं चल रहा होता. तो अक्सर ये मैं सजेस्ट करूंगा कि एक फैन आपका डायरेक्ट होना चाहिए. एक फैन उस वक्त जब आपका बर्ड एज इज मोर देन 20 डेज, देन योर वन फैन इज डायरेक्टली ऑन. तो दूसरा ये है कि उस वक्त ये होता है कि उस वक्त फिर फैन जो है वो जैसे ये उस वक्त की बात हो रही है जब गर्मियों की बात हो रही है, जब वहां पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है. लेकिन सर्दियों में ये है आपका फैन ऑन ना हो, डायरेक्ट ना हो, वहां पे आपका मिनिमम वेंटिलेशन होता है. ये मिनिमम वेंटिलेशन जब आपको जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, आपकी मिनिमम वेंटिलेशन क्या होती है, मिनिमम वेंटिलेशन होती है साइड से वेंटिलेशन, उसमें टनल नहीं होती, ठीक है ना. तो ये उसमें सेट टेम्परेचर को आपको जो ऑप्टिमम रखने के लिए, ठीक है ना. और आउटसाइड टेम्परेचर डेफिनेटली ये इसमें आपको देख रहे हैं, आपकी चेंजेस देख रहे हैं आप इसकी. आउटसाइड टेम्परेचर आपका सेट टेम्परेचर से लो है, ठीक है, तो आपको मिनिमम वेंटिलेशन आपका, ठीक है सर, ये आपने देख लिया. और ये एग्जांपल है इसकी मिनिमम वेंटिलेशन की कि इसमें मैंने दी है कि अगर एज 2 दिन की एज है, बर्ड 2 दिन का है और इसका सेट पॉइंट 32 डिग्री है और आउटसाइड टेम्परेचर अगर आपका 28 है, तो आपका जब हीटिंग सिस्टम ऑन होगा तो क्या होगा, आप मिनिमम वेंटिलेशन की स्टेज में होंगे, ठीक है ना. और एज आपकी 21 है, जब सेट पॉइंट 22 है, तो अगर आउटसाइड टेम्परेचर 10 डिग्री होगा, डेफिनेटली ये यहाँ पे भी आपका मिनिमम वेंटिलेशन ऑन हो जाएगी, ठीक है. अभी आ जाते हैं मिस्टर हरमन. यू टोल्ड मी द हीट प्रोडक्शन ऑफ द बर्ड्स. Yeah. So this is the chart. I present the chart that what is the production of the birds. It depends on the age of the bird, weight of the bird. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हीट को मेजर जब करना होता है आपका, तो आपको देखना होता है कि एक तो आप जो हीट जनरेट हो रही है टेम्परेचर से जनरेट हो रही है, लेकिन आपको वो भी देखना होता है कि जब आपका यहाँ पे आपका बॉडी वेट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना वाट पर बर्ड जो है ये इंक्रीज कर रहा है, ये वहां पे ये जनरेट कर रहा है. तो हीट को आप वाट में लेते हैं, ठीक है ना. तो इसी वजह से आप जब हीटर लगाते हैं तो वो किलो वाट की उसकी कैपेसिटी होती है, आपको याद होना चाहिए. मैंने एक एग्जांपल भी दी है जेट मास्टर की. इस तरह मुख्तलिफ पैराकूलीज है, मुख्तलिफ जनरल है हीटर्स हैं, तो उनकी जितनी भी होती है वो किलो वाट पे होती है. तो किलो वाट इसलिए होती है कि वो वाट जनरेट, देखिए 100 ग्राम बॉडी वेट है तो 30, अच्छा ये भी वेरी करता है टेम्परेचर बाय टेम्परेचर. तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.6 वाट पर बर्ड जो है ये जनरेट करेगा. इसी तरह 200 जब 2 kg का है तो 20 डिग्री पे ये हमारा ज्यादा 30 डिग्री का है तो ये 5.4 वाट हमारा जो फुल ग्रोन बर्ड है. The full grown bird of 2 kg weight at 30 degree centigrade, he produced 5.4 watt per bird. He produced heat 5.4 watt per bird.
सो एग्जांपल इज वेरी सिंपल, 20,000 ब्रॉयलर है आपके पास एंड इसका बॉडी वेट 2,000 ग्राम है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख लेंगे, ये देखें आपने, ये देख रहे हैं ना आप, जब आपने इसको 11 वाट यहाँ पे था 20 डिग्री पे, तो हमने इसको जब किया तो ये 220 किलो वाट बन गया। ये जो वाट है इनको आप देखें, किलो वाट के का मतलब 1000 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये हमारे इलेक्ट्रिकल में तो बड़ा यूज होता है, आम बहुत कम यूज होता है। किलो मीन्स 1000, ठीक है। सो जब आपने यहाँ से इसको किलो लाना है तो इसको 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, आपका ये, आप इसको किलो वाट्स करते हैं, किलोमीटर्स में, अगर मीटर्स में है तो किलोमीटर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ गया ब्रॉयलर प्रोडक्शन ऑफ वाटर वेपर्स। अच्छा ये देखें आप, नमी को हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी मिस्टर हरमन टोल्ड अस दैट कि दे विल रिड्यूस द डेंसिटी इन डिफरेंट वेदर्स, आल्सो वी डू हियर इन पाकिस्तान। हम बर्ड का जो एरिया होता है पर बर्ड, जो डेंसिटी रखते हैं, उसका जो एरिया रखते हैं उसके लिए तो वो हम जो है सर्दियों में जो है वो हम उसको ज्यादा कर देते हैं, और गर्मियों में उसको, सर्दियों में हम कम कर देते हैं और गर्मियों में ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दी है। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर काम करता है, जैसे 30 डिग्री पे जो 100 ग्राम का है 1.3 ग्राम वाटर पर आवर पर बर्ड, ठीक है जी। ये वाटर वेपर्स जो है वो जो सांस ले रहा है वो ये निकाल रहा है 1.3 ग्राम, ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये जो 2 kg का बर्ड है 18 डिग्री पे ये 8.5 ग्राम। अभी देखिए हमारे पास 2 डिग्री 2 kg वाले मैक्सिमम ये जो प्रॉब्लम में आ रहा है, हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर, तो इसमें हमारे पास 2 kg बर्ड होता है, ठीक है। तो आप खुद देख लें कि उसमें नमी को बढ़ाने में ये बर्ड का बड़ा किरदार होता है। तो नीचे एग्जांपल है, आप देखिए 20,000 बर्ड है, तो 2 kg वेट है, 200 ग्राम वेट है उसका। तो ये आप 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको 8.5 जो है ये दिया हुआ था, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी आ जाती है पर डे, ये जनरेट कर रहा है उसको, ठीक है ना। अच्छा ये मिस्टर अहमद, आल्सो वी हैव अ डेटा ऑफ ब्रॉयलर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रॉयलर। सो 100 ग्राम बॉडी वेट वाला जो है वो 0.5 ग्राम CO2 पर आवर पर बर्ड जनरेट कर रहा है। इसी तरह 2 kg वाला जो है 5 ग्राम, ठीक है। तो वेंटिलेशन इसलिए भी जरूरी है कि हमारे जो बर्ड्स हैं दे आर ऑलरेडी आल्सो जनरेटर्स ऑफ हीट, जनरेटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अगर डेटा आपके पास हो तो देन यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। तो अदर पोल्यूशन गैसेस जो है वो इसके अलावा है, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन जो डस्ट एंड हार्ट पे रिलेट, ठीक है, ठीक है जी। तो ये एडिशनली जो है जो स्ट्रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द लिटर। तो डेफिनेटली ये बाकी चीजें, ये जितनी चीजें हैं आपको नजर आ रही है, ये अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें ये आपका मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेंटिलेशन ये जनरेट होती है, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये आप सबने इसको जिसके पास है वो इसके क्लिप्स भी ले सकता है। अच्छा ये मिनिमम एयर फ्लो बताया है इसका, ये भी बड़ा रिसर्च के बाद, आफ्टर रिसर्च जो मिनिमम वेंटिलेशन रिक्वायर्ड पर बर्ड जो है, तो ये जो कैलकुलेट किया गया है, ये इसके लिए लेइंग हैंड्स के लिए है, और ये पर केजी 0.7 जो है वो क्यूबिक मीटर पर केजी ये है, ठीक है। ये इसका ये 7 जनरेशन इसने बताई है कि 1500 ग्राम का ले रहा है तो इसकी CO2 प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है जी, और फिजिकल कितनी है, और इसमें फ्रस्ट्रेशन जो है वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे शो की है। ये डिफरेंट एयर फ्लो रेट पे डिफरेंट इनका होता है बिहेवियर, ठीक है ना। तो ये आपको बताया गया है। इसके बाद ये आपको टेक्स्ट मिनिमम वेंटिलेशन जो है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेट जो है। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है, ये मिनिमम वेंटिलेशन रेट विल बी डिपेंड्स ऑन दैट ये टाइप ऑफ बर्ड कौन सा है आपका। एनिमल रिक्वायरमेंट्स जो है डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने दी होती है, ठीक है। और
और आपको ये भी पता होता है कि वहां पे आपकी आपकी उस स्टेज पे आपकी एयर कितनी है आपकी हाउस में, वही बाउंड उसकी कितनी है। ये सारी चीजें जो है ये इसके लिए मिनिमम वेंटिलेशन के लिए हमें देखनी पड़ती है। ये आ गया आपका मिनिमम वेंटिलेशन जो है रेट जो ये 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर के हिसाब से ये डिजाइन हुआ है। तो ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि बर्ड जो है 1 से लेके 7 डे तक जो है क्यूबिक मीटर पर आवर पर बर्ड जो है 0.16 है, ठीक है। यहाँ पे ये पर केजी की बात नहीं हो रही, मैं 0.7 जो था पर केजी, आई एम डिस्कसिंग द मिनिमम वेंटिलेशन रेट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड द थंब रूल इज दैट 0.7 cubic meter per hour per kg bird. This is the thumb rule for the minimum ventilation. But it depends, ये डिपेंड करता है आपके हाउस पे। अगर आपके हाउस पे डस्ट है तो आप ये 0.7 को कम कर सकते हैं। अगर वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे इजी फील नहीं कर रहा तो 0.5 से बढ़ा सकते हैं। और ये वही जनरेट किया गया है कि पर बर्ड का है। अगर आपका हाउस जो है आपको 0.16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप इसको वेंटिलेट करें, ठीक है। और टोटल किलोमीटर पर आवर ये सारा इसने दिया हुआ है, ये 20,000 बर्ड के लिए है, ठीक है ना ये चीज। तो ये सारा 50, 40, 49 पे ये इसका जो रेट पड़ जाता है 1.35, ठीक है। और इसको 27,000 क्यूबिक मीटर। तो आपका जनरल जो फैन है आपका साइड फैन जो है वो 10-11,000 ये जो है वो होता है। तो आप कोशिश करें आपका अगर 30,000 फ्लॉग है तो आप 2 फैन यूज करें, ठीक है ना। दोनों साइड पे साइड फैन यूज करें, टनल फैन यूज करने से बेहतर है, ठीक है ना वो। अच्छा नेक्स्ट जो आ गया उसका नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, ये ब्रीड है रॉस है, इसकी एयर रिक्वायरमेंट जो है ये 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर केजी है लाइव वेट का। एज इसकी 21 डेज है, वेट इसका 0.9 केजी है, नंबर ऑफ बर्ड इसका 50,000 है। तो ये आपने देखा कि आपने क्या किया, आपने मिनिमम वेंटिलेशन रेट जो है उसको वेट से जरूरत दे दी, ठीक है। वेट यहाँ पे इसने केजी में लिया, अगर ग्राम में लेंगे तो फिर 1000 से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0.689 क्यूबिक पर बर्ड आपको ये, और ये एक बर्ड के लिए ये रिक्वायर्ड है। तो 50,000 के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी 24,000। तो आपका जो इंटरनल फैन होता है वो 43,000 टोन फैन जो है वो 43,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसकी कैपेसिटी होती है, एयर फ्लो कैपेसिटी। तो ये आपको देखिए आपका एक और जो साइड फैन है जो वो 20,000 उसकी 20,000। ये जितने भी फैंस हैं इनकी साथ इनका जो प्रोड्यूसर है वो वहाँ पे इसका एक नेम प्लेट लगी होती है, वहाँ पे उसने प्रोसेस पे एयर फ्लो कैपेसिटी दी होती है, ठीक है ना। तो ये इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि इस फैन आप फैन का देखें, चेक करें फैन का, उस फैन की पूरी उसकी हिस्ट्री देखें, उस हिसाब से करें। और अगर आपके पुराने फैन है तो आप उसकी डिप्रिसिएशन करके आप उसका 5% बिलो कर दें उसकी, ठीक है। और बाकी डस्टी है तो 5% और कर दें। अगर फिर जनाब उसका अगर वो उसका फैट बेल्ट लूज है तो 5% और कर दें, आवाज आ रही है 5% और कर दें। तो ये सारी चीजें आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैक्सिमम वेंटिलेशन क्या है, मैक्सिमम वेंटिलेशन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द हाउस, ठीक है जी। तो ये हमारे उस वहाँ पे मैक्सिमम वेंटिलेशन के लिए ये है कि वहाँ पे आपका जितनी वेंटिलेशन है आपकी हो रही है टेम्परेचर बेस पे। मैक्सिमम वेंटिलेशन हमेशा टेम्परेचर बेस पे होती है, कभी सर्दियों में मैक्सिमम वेंटिलेशन नहीं होती। जब आपका आउटसाइड टेम्परेचर लो तो कभी मैक्सिमम वेंटिलेशन नहीं होती, याद रखिए। तो ये एलपीवी सिस्टम जो है ये टेम्परेचर एरियाज दुनिया के बनाए हुए हैं। तो ये शो कर रहे हैं यहाँ पे कि सब कुछ ट्रॉपिकल जोन है, कुछ सब ट्रॉपिकल जोन है, कुछ नॉर्मल जोन है, ठीक है ना। तो ये ग्रेट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल जोन, ठीक है जी। और ट्रॉपिकल एरिया उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल एरिया जो है और ये जितने भी है सब हमारा जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल जोन है जहाँ पे फ्लक्चुएशन है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये इसने सारा ट्रॉपिक जो है और ये इक्वेटर सारा इस हिसाब से ये बताया हुआ है। और इस एरिया का इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, इसका क्या क्या है, इसकी क्या कोल्ड है, हाई है, ड्राई है, ये सारा यहाँ पे ये सारा इसने इस चार्ट के हिसाब से जो किया ड्राइव इसने किया हुआ है यहाँ पे, इसके हिसाब से हमने किया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेंटिलेशन, ठीक है जी।
ये नॉमिनल ऑफ द मैक्सिमम एयर, ये आपको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ये बहुत लंबा एक पूरा इसके ऊपर चैप्टर है इसका, ठीक है ना। और बाकी ये देखिए, कूलिंग के लिए आपको एयर स्पीड चाहिए, ठीक है। और फॉगिंग के लिए आपको चाहिए एक लिमिट चाहिए कि आप किस लिमिट पे आप उसको आप फॉगिंग सिस्टम, हाई प्रेशर कूलिंग सिस्टम, फॉगिंग सिस्टम, ये जो आप फवार वाला सिस्टम होता है, इसको मैं उर्दू में ये भी कह सकता हूँ, ये जो आप फॉगिंग, आपको पता ही है वैसे ये फॉगिंग सिस्टम लगा होता है आपकी जो है, जब आपकी ड्राई हो तो आपको वहां भी, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पेशल, ये मैंने पीछे अपने ग्रुप्स में एक गन भी शेयर की थी, वो मोर देन 2000 की मिल जाती है, वो आप पाइप के आगे लगा लें, उसके आगे जो है फॉगिंग सिस्टम हल्का सा वो हो जाएगा, उसमें आप जो है हल्का हल्का कर रहे हैं उसको, ठीक है ना जी। थैंक यू वेरी मच। और फिर आपका ये फॉगिंग है, फिर आपका पैड्स कूल सेल है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपका वेट 1.8 kg है, आपके चिक्स है 50,000, तो क्लाइमेट जोन पाकिस्तान का जो है वो 4 पे कैलकुलेट हुआ हुआ है, ठीक है ना जी। और फैक्टर इसका 8+ कूलिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें और फैन रिक्वायरमेंट्स, ये बाकी इंशाल्लाह ताला मैं हम लोग इस तरह है कि इसको नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। और अब मैं आई थिंक 2 मैसेज मेरे आए हुए हैं मेरे पास, हाउ सुपरवाइजर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, और जी नवाज, डॉक्टर नवाज साहब वेलकम सर। और अच्छा, दूसरा इस तरह है कि डॉक्टर उस्मान वेलकम। और अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो लेक्चर था इसमें, क्योंकि मिस्टर हमारे स्पीकर थे मिस्टर हरमन, और जर्नल एक उन्होंने कंटेस्ट बताना था, तो आपको एक जर्नल कंटेस्ट बताया, ठीक है ना। बाकी आपको हम जो है ये जो जो चीज़ें कह रहे हैं, इसका हमने उर्दू में इसलिए तर्जमा किया है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें साथ होंगी, ठीक है ना, और ये साथ चलेगी। और इंशाल्लाह ताला आप भी अपने आप को प्रमोट कीजिए, आपकी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की होगी, ठीक है ना जी। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और कोई क्वेश्चन जो है वो काइंडली, मैंने देखा मुझे क्वेश्चन कोई नहीं आया हुआ आपकी तरफ से, तो थैंक यू वेरी मच। एंड मिस्टर हरमन, thank you sir, thank you very much. Thank And you. Yes. see you tomorrow, because our classes are Friday, Saturday, Sunday 5:30 to 6:30 p.m. Okay. So I am happy this week you will join us, and next week inshallah taala और हमारे नए आएंगे साथ हमारे साथ। तो ये आज आपको जनरल व्यू था, एक आपको बताना था हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो कंटेंट था, इंट्रोडक्शन की, वेंटिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी मॉडर्न जो है वो आपको बताई। तो ये आपके 3 टॉपिक हमने जो, फिर आपको एयर क्वालिटी और एयर एक्सचेंज का हमने बताया, फिर आपको हमने बताया कि आपका बर्ड कितना हीट जनरेट कर रहा है, कितना वाटर वेपर जनरेट कर रहा है, ठीक है। और वो उसका उसके लिए ये जनरेशन के लिए आपको पूरा आपको डेटा हमने बना के दिया। तो ये जनरल चीजें हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको एक फैक्ट देना है वेंटिलेशन सिस्टम का और वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट्स का क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम जो हमारा लास्ट वीक का लेक्चर होगा उसमें हम आपको डिजाइन करना सिखाएंगे। आपने हाउस को, अपने हाउस को किस तरह डिजाइन करना है, आपके कितने इनलेट्स होने चाहिए, कितने पैड्स होने चाहिए, कितने फैन होने चाहिए, वो ये चीजें जब आपको ये चीजें आ जाएंगी तो आप सुपरवाइजर हैं, तो आप वर्कर हैं, तो आप ड्यू कमर्स हैं, हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, हमारे साथ जो हैं फार्मर्स भी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर्स भी हैं। तो ये सब के लिए है, तो आप सब लोग शामिल हैं हमारे साथ। तो हमने इंशाल्लाह ताला हमने आपको ये सारी चीजें आप तक पहुंचानी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको काफी चीजें आएंगी, आस्ते आस्ते आपको समझ भी आ जाएगी, जो चीजें कुछ नहीं होंगी, कुछ हमारे लिए नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे क्वेश्चन कोई नहीं है यहाँ पे, मेरा दिल था कि क्वेश्चन होता तो हम उस पर करते। तो लास्ट पे मैं अपने सारे जितने भी हैं हमारे पार्टिसिपेंट उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। आपको कल इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी 5:30 बजे इंशाल्लाह।
और खुश रहिए, आबाद रहिए, और कल जो है इसके बारे में जो आपने पढ़ा है इसकी भी क्वेश्चन जो होंगे वो आप हमें जनरेट करें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद अल्लाह ताला खुश रखे। Thank you very much. Yes, Mr. Herman, thank you very much. Thank to you. join us. Pleasure to be your guest. And so great, sir. I'm very thankful to you. Thank you very much. Thank you. Allah Okay, Hafiz. and we keep in touch. Okay, Thank you, sir. thank you. Allah Hafiz. Bye Allah bye. Hafiz. Bye.